have solved some questions regarding with the our properties and our previous point regarding with the series. Okay, so we have solved some questions regarding with that. So I think you got the better idea regarding with the series, how to solve the questions of those series. Okay, then at the end of the previous lecture I just told you that there is one question remaining from this. So first of all we'll take that one question and then we will move towards the next point. Okay, so what is that question? First of all, write down that question. If small s So see over here what they have given us into the question. It is if SR denotes the sum of cubes of first n natural numbers. Sum of cubes of first n natural numbers and small SR denotes the sum of first n natural numbers. Then तो फिर जो भी कैपिटल SR की वन है वो क्या रहेगा हमारा सम ऑफ क्यूब्स ऑफ n natural numbers, और जो भी स्मॉल SR रहेगा वो क्या रहेगा हमारा सम ऑफ n natural numbers. Okay, so we have the concept regarding with this, or we can say that we have the series regarding with the cubes and regular sum. Okay, so simply first of all we just convert this into the format of R series, that is nothing but the summation of R is equals to 1 to n. What is the series for this capital SR? This is nothing but the sum of cubes of first n natural numbers. That is nothing but the whatever the formula we have seen regarding the n cube. That is nothing but the n in bracket n plus 1 divided by 2 whole square. Am I right? Okay. So at the place of this n here R is present. Am I right? R is present. So simply we have to just substitute R at the place of n, that is divided by 2 and whole square, and total divided by small SR. It is nothing but the our sum of n natural numbers. N natural number, it is nothing but the n in bracket n plus 1 by 2. Okay, तो फिर n के प्लेस पे कौन यहाँ पे फिलहाल के लिए R. So simply R in bracket R plus 1 by this one term, this square term get cancelled. So simply we will get, that is summation of R is equals to 1 to n, and this will be the R into R means R square, or plus 1 into R means R, and this 1 by 2 we can take out. Okay, and as we know regarding with this what is the result regarding with this? That is nothing but the 1 by 2 in bracket
r square, series of r square, it is nothing but the n in bracket n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6, and regarding the r is nothing but the n in bracket n plus 1 by 2. Okay, so simply after solving this, I think in the previous question only we got the result regarding this, that is nothing but the n in bracket n plus 1 into n plus 2 divided by 3 over 6. Okay, so simply this will be the answer regarding the given question, that is nothing but the n in bracket n plus 1 into n plus 2 divided by 6. Is that clear? Okay. Fine. Then next concept is regarding the method of difference. Okay. First of all, just write down the theoretical part of this, so I can just explain this by using the one example. Okay. So first of all, we will write down the theoretical part of this method of difference. Okay. Then write down the question, that is nothing but the which is given. Find sum of n terms Okay, so simply see over here where we can use this method of difference. Okay, for that see this question, that is nothing but find the sum of n terms which are present in a sequence like this, that is 3 plus 7 plus 13 plus 21 plus and so on. If we see, is there any kind of proper difference or proper ratio is present in between those numbers? Are you able to see any kind of proper difference over there? No, I'm not. See, in these two numbers there is the difference of 7 minus 3, 4. In these two numbers, difference of 6. Over here, 8 and so on. Okay? So simply into the given series, we are not getting the proper sequence. No proper sequence. Okay,
there is no any proper sequence present. So simply what we can do that we can see what is the difference in between the difference of that series. जो कि हमारे सीरीज में का डिफरेंस हमें मिल रहा है हर एक कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में का, तो फिर ये जो भी हमें नंबर्स मिलते जाएंगे तो फिर ये नंबर्स को हमें अच्छे से देख लेना। अभी अगर हम देखेंगे तो फिर ये टाइम पे हमें प्रॉपरली मिल रहा है कि 4 और 6 के बीच में 2 का डिफरेंस है, 6 और 8 के बीच में 2 का डिफरेंस है। अभी जो भी नेक्स्ट वाली टर्म आएगी उसमें भी 2 का डिफरेंस रहेगा। इट मींस दिस व्हाटएवर द सीक्वेंस वी गॉट, दिस सीक्वेंस इज प्रेजेंट इन एन राइट। डिफरेंस कॉमन आ रहा है ना, तो फिर इसके वजह से हम क्या कह सकते हैं कि ये केस में ये जो भी सीक्वेंस मिलेगा दिस विल बी प्रेजेंट इन एन एपी। ओके, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में वो प्रेजेंट। अभी हमने ये फर्स्ट टाइम ही तो डिफरेंस लिया था ना, जो भी यहाँ पर कहा गया है डिफरेंस इन कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी, kth डिफरेंस। अभी हमने एक ही बार डिफरेंस लेने के बाद में हमें तो समझ में आ गया कि ये जो भी हमें आंसर मिल रहा है ये एपी में है। अगर कभी कभार ऐसा हुआ कि इसका आपने डिफरेंस ले लिया फिर भी जो भी सीक्वेंस मिल रहा है वो आपको एपी में नहीं मिल रहा, फिर उसके बाद में उन दोनों का भी हम डिफरेंस ले लेंगे। ओके, ये जो भी सीक्वेंस मिलेगा उसका भी हम डिफरेंस लेते जाएंगे। अगर वो डिफरेंस लेने के बाद में जो सीक्वेंस मिल रहा है वो अगर एपी में होगा तो फिर वो उसकी के की वैल्यू, ये अभी फर्स्ट डिफरेंस पे ही जब हमने एक ही बार डिफरेंस लिया तभी हमें एपी मिल गया, इसलिए k इज इक्वल टू 1। अगर दूसरी बार मिलता था तो फिर k की वैल्यू 2, तीसरी बार मिलता तो फिर k की वैल्यू 3। इज दैट क्लियर? ओके फाइन। तो फिर अभी देख लो कि k की वैल्यू हमने 1 कंसीडर कर लिया, तो फिर अभी ये क्या कह रहे हैं, tn इज नथिंग बट द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री k प्लस 1। तो फिर इसका मतलब for tn polynomial of degree k plus 1 means what? 1 plus 1 means, यहाँ पर लिख के देता 1 plus 1, it is nothing but the 2. So simply see over here we have to write down the polynomial of degree 2. So simply degree 2 का polynomial it is nothing but the standard format of our quadratic equation. स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ax square plus bx plus c। अभी ये जो भी है दिस इज नथिंग बट आवर वेरिएबल, सो ओवर हियर n टर्म्स आर प्रेजेंट, सो सिंपली एट द प्लेस ऑफ x वी कैन यूज द आवर वेरिएबल an square plus bn plus c। ओके, तो फिर अभी हमें करना क्या है, सिंपली वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ दिस a b c के हमें वैल्यूज फाइंड आउट करना है। सो सिंपली जो भी हमें इक्वेशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, हमें डायरेक्टली n के फॉर्मेट में मिल जाएगा। तो फिर n के फॉर्मेट में मिल गया तो फिर वहां पर डायरेक्टली हम सीरीज लगा सकते हैं, कौन से टाइप की ये सीरीज है वो डायरेक्टली हम फॉर्मूलाज वहां पर पुट कर सकते हैं, दैट्स इट। ठीक है, देखो भैया अभी ये जो भी abc है ना, तो फिर abc इन तीनों के हम वैल्यूज कैसे निकालेंगे। सबसे पहले देख लो क्या है कि हम क्या करते हैं, n की जगह पे 1 पुट करते हैं आफ्टर पुटिंग n इज इक्वल टू 1। So what you will get, that is t1 is equals to a into 1 a plus b is, see over there what is the value of t1, that is nothing but 3। अभी ये बात याद रखनी है कि ये जो भी वैल्यूज देखेंगे हम t के रिगार्डिंग ये डिफरेंस में की नहीं देखेंगे, हमें जो भी सीरीज का देखना था ना, जो भी सीरीज की सम हमें फाइंड आउट करनी है, वही सीरीज का जो भी t मिल रहा है वही टर्म्स हम उससे उठाएं। तो फिर t1 कितना है 3, so simply a plus b plus c is equals to, then next that is nothing but t, put n is equals to 2, तो फिर t2 की वैल्यू ये क्या हो जाएगी, 2 स्क्वायर मींस 4a plus 2b plus c is equals to, सेकंड टर्म कितनी है 7, और इसके बाद में n is equals to 3, तो क्या मिलेगा 9a plus 3b plus c is equals to, third term is 13। क्लियर? ठीक है, अभी हमारे पास 3 वेरिएबल्स है और 1 2 3 इक्वेशंस है, तो फिर तीनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो और फटाफट से वैल्यूज फाइंड आउट कर लो। तो फिर अभी देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर से अगर हम देखेंगे ये दोनों इक्वेशन हमने उठाए
और इन दोनों इक्वेशंस में हमने क्या किया कि इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 मतलब करते हैं हम लोग कि t2 माइनस t1, तो फिर ये क्या हो जाएगा, t2 की वैल्यू कितनी है 7 और t1 की वैल्यू कितनी है 3 और विच इज इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c 7 इक्वल्स 4a प्लस 2b प्लस c और इधर a प्लस b प्लस c। देख लो सबट्रैक्ट करने के बाद क्या हो जाएगा, प्लस c माइनस c कैंसिल, 4a में से a गया 3a, 2a में से b गया b, 7 माइनस 3 4a 4 इज इक्वल टू 3a प्लस 3, ये ठीक है। वैसे ही कोई भी दो इक्वेशंस ले लेंगे, मान लेते हैं ये और ये इक्वेशन 2 और 3, इसमें से कोई भी सबट्रैक्ट कर सकते हैं, तो फिर इक्वेशन मतलब t3 माइनस t2 क्या हो जाएगा 13 माइनस 7 और ये 9a प्लस 3b प्लस c और ये क्या है 4a प्लस 2b प्लस c। सबट्रैक्ट करने के बाद में क्या मिलेगा 13 माइनस 7 6, 5a और प्लस b और वो किस b में निकल गया, प्लस माइनस c कैंसिल हो। अब देखो दोनों भी इक्वेशन आपको a और b के फॉर्मेट में मिल चुके हैं, तो फिर डायरेक्टली हम करेंगे क्या कि ये दोनों इक्वेशन को सिंपलीफाई कर लेंगे। सिंपल देख लो, ये माइनस ये करेंगे तो फिर b भी कैंसिल, 5a माइनस 3a 2a और 6 माइनस 4 2, तो फिर a की वैल्यू कितनी मिली 1, a की वैल्यू 1 मिली है, कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, 3 into 1 3 3 इधर आके माइनस 4 माइनस 3 1, तो फिर b की वैल्यू भी 1 a भी 1 1 मिले हैं, तो फिर यहाँ पर देखो a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 3a, इसका मतलब c की वैल्यू भी, तो फिर a b c के तीनों के वैल्यूज मिल गए, तो फिर वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में पुट कर देंगे। ठीक है, तो फिर हमें क्या मिलेगा tn इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, c की वैल्यू 1 है। अभी देखो ये जो कुछ भी मिल गया है हमें तो सम फाइंड आउट करना है ना, सो सम ऑफ n टर्म्स इट इज नथिंग बट द सम ऑफ ऑल द nth टर्म्स, जो भी फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म है, मतलब t1 t2 t3 अप टू tn, ऐसे सारे टर्म्स की सम करना है। तो फिर इसका मतलब क्या करेंगे, समेशन ऑफ tn इक्वल्स टू समेशन ऑफ n स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ n और प्लस समेशन ऑफ 1। यहाँ पर से क्या मिल जाएगा, फिर समेशन ऑफ n स्क्वायर इट इज नथिंग बट द n इन ब्रैकेट n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 प्लस n means n in bracket n plus 1 divided by 2 और plus 1 means n। फिर ये क्या रहेगी हमारी sum of tn and this will be your correct answer regarding the question। is that clear? okay, इसको सिंपलीफाई करना चाहते हो तो फिर सिंपलीफाई भी कर सकते हो और रखना चाहते हो तो फिर ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो फिर ये कंडीशन किसके बारे में हो गई, AP के बारे में। ठीक है, अभी कभी कभार ऐसा भी तो हो सकता है ना, जो भी आपको मिल रहा है वो डिफरेंस के थ्रू, ये जो भी डिफरेंस है ये जीपी में हो सकता है, मतलब रेशियो सेम हो सकते हैं। तो फिर अगर रेशियो सेम है तो फिर ये जीपी में हो जाएगा, तो फिर वो जीपी के लिए कंडीशन क्या है वो अब हम देखेंगे। ठीक है, ये समझ में आया, कुछ भी नहीं, सेम करना है, सिर्फ ये बात याद रखनी है कि अगर वो जो भी डिफरेंस मिल रहा है वो अगर एपी में होगा तो फिर वो एपी वाला डिफरेंस है, इसलिए डायरेक्टली हम टीएन का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री a प्लस।
एक पॉलिनोमियल। ये रहेगा हमारा फॉर्मूला। तो फिर इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन देखिए, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऐसा कुछ तो क्या आपको नहीं करना, ठीक है। अभी देखो फिर से कोई भी हमें प्रॉपर फॉर्मेट नहीं मिल रहा है तो फिर क्या करेंगे, डिफरेंस देखेंगे। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 3, इन दोनों के बीच का 6, इन दोनों के 22 माइनस 10 12 24। अभी देख लो यहाँ पर अगर हम देखेंगे प्रॉपरली तो फिर 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24। इसका मतलब कॉमन रेशियो मिल रहा है। सो इट मींस दिस इज नथिंग बट दी k is equals to 1 which is present in an geometric progression में जो present, ठीक है। तो फिर इसका मतलब यहाँ पर ये वाला कंसेप्ट लगेगा। तो फिर जनरल टर्म, फॉर्मूला फॉर द जनरल टर्म दैट इज नथिंग बट Tn is equals to ar raised to n minus 1 plus polynomial of degree k minus 1 means 1 minus 1, इसका मतलब 0, ठीक है। तो फिर अभी देख लो यहाँ पर हमें क्या पता है, ar raised to n minus 1, ar raised to n minus 1। अभी यहाँ पर जो भी प्रेजेंट है, यहाँ पर ar raised to n minus 1 जो भी कंसेप्ट है, तो फिर यहाँ पर क्या यूज करेंगे हम लोग, r raised to n minus 1 मतलब यहाँ पर कुछ पता है हमें r या फिर a, ऐसा कुछ जो भी टर्म गिवन है हमारे पास, तो फिर ये वाले टर्म को हम कुछ बोल सकते हैं या फिर टर्म में से कुछ पता है हमें। देखो सिंपल सिंपल क्या है, 3 2 जा 6 है, 6 2 जा 12 है, इसका मतलब जो भी कॉमन रेशियो मिल रहा है वो क्या है 2। अगर कॉमन रेशियो अगर हमारा 2 होगा तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, r raised to means 2 raised to n minus 1 और प्लस पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 डिग्री वाला पॉलिनोमियल क्या होगा, इसका मतलब कोई भी एक कांस्टेंट b, एक कांस्टेंट कंसीडर कर लेते हैं b, ठीक है। तो फिर ये क्या मिलेगी हमें tn की वैल्यू। अभी tn की वैल्यू मिल गई तो फिर से सेम लास्ट टाइम जैसे पुट वैल्यू ऑफ n एज 1, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो फिर t1 क्या बन जाएगा, देखो a 2 raised to 1 minus 1 means 0, मतलब 2 raised to 0 is 1, तो फिर a plus b equals to, अभी a plus b की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें यहाँ पर, फिर से 1 वैल्यू जो कि हमारी मेन सीक्वेंस में की वैल्यू है, जैसे कि हमने लास्ट AP वाले क्वेश्चन में भी किए थे। उसके बाद में t2 a into 2 raised to 2 minus 1, 2 minus 1 मतलब 1, तो फिर ये क्या हो जाएगा 2, तो फिर 2a और प्लस b which is equals to, दोनों इक्वेशन को सिंपलीफाई करेंगे तो फिर सिंपल क्या हो जाएगा t2 minus t1, t2 minus t1 अगर कर लिया तो फिर 4 equals to 2a plus b और फिर उसके बाद में 1 equals to a plus b, b कैंसिल, 2a minus a और equals to 3a, a की वैल्यू 3 मिल गई तो फिर b की वैल्यू क्या हो जाएगी -2। ओके, a की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, a की वैल्यू मिली है 3 और b की वैल्यू मिली है -2। तो फिर ये सिंपल जो भी वैल्यूज मिले हैं वो वैल्यूज हम अपने इक्वेशन में पुट कर देंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन में। तो फिर यहाँ पर क्या मिल जाएगा, tn is equals to 3 in bracket 2 raised to n minus 1 और प्लस b मतलब -2,
ठीक है, अभी सम फाइंड आउट करना है तो फिर समेशन ऑफ Tn, फिर समेशन ऑफ 3 इन ब्रैकेट 2 रेज़ टू n माइनस 1 और माइनस समेशन ऑफ 2। तो फिर देख लो यहाँ पर से इनका समेशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, सिंपल, अभी ये 3 है, इसका मतलब ये 3 बाहर आ जाएगा, समेशन ऑफ 2 रेज़ टू n माइनस 1 और माइनस ये 2 भी कांस्टेंट है तो फिर माइनस 2 बाहर और समेशन ऑफ 1। अभी 2 रेज़ टू n माइनस 1 ये क्या है देख लो, अगर हम पुट करेंगे 2 रेज़ टू n की वैल्यू 1 पुट कर दी तो फिर ये क्या हो जाएगा 2 रेज़ टू 0 प्लस अगर 2 पुट की तो फिर 2 रेज़ टू 1 2 रेज़ टू 2 2 रेज़ टू 3 एंड सो। अगर हम देखेंगे प्रॉपर्ली तो फिर ये सीक्वेंस किस में प्रेजेंट है, जीपी में प्रेजेंट है। अगर ये सीक्वेंस जीपी में प्रेजेंट होगा तो फिर इसका सम का फॉर्मूला क्या आता है हमारे पास, सीक्वेंस इज प्रेजेंट इन जीपी देन Sn इज इक्वल टू a ऐसे ही कुछ होगा ना, a r raised to n minus 1 upon r minus 1। तो फिर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 a की वैल्यू कितनी है 2 raised to 0 मींस 1 r raised to n minus 1 r कितना है 2 raised to n minus 1 upon 2 minus 1 और माइनस 2 इंटू समेशन ऑफ 1 इज नथिंग बट दी n। ठीक है, तो फिर यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 2 minus 1 मींस 1 तो फिर 1 1 एज इट इज 3 इन ब्रैकेट 2 रेज़ टू n minus 1 minus 2n क्या मिल जाएगा फिर 3 into 2 raised to n means 2 raised to n minus 3 plus minus फिर ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर रिगार्डिंग द गिवन क्वेश्चन। ओके, 3 into 2 raised to n minus 1 minus 2n। ठीक है, तो फिर कुछ भी नहीं, दोनों भी जो भी मेथड ऑफ डिफरेंसेस हमारे पास प्रेजेंट है तो फिर दोनों केस में हमें सिर्फ ये दोनों फॉर्मूलाज याद रखने हैं। इसके लिए रिगार्डिंग फॉर्मूला क्या था, ये था हमारे जीपी के रिगार्डिंग फॉर्मूला जनरल टर्म वाला, ये फॉर्मूला याद रखना है। और जो भी दूसरा वाला फॉर्मूला वो क्या याद रखेंगे, जनरल टर्म इज इक्वल टू पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री k plus 1। ठीक है, तो फिर ये फॉर्मूला था हमारा जीपी के लिए और ये फॉर्मूला था हमारा एपी के लिए। ये दोनों फॉर्मूलाज याद रखेंगे तो फिर सिंपल से हमें कोई भी क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। क्या है सिंपल, अगर जो भी गिवन सीक्वेंस है वो प्रॉपर हमारे सीक्वेंस में है नहीं, उसको अगर हमें कन्वर्ट करना है तो फिर उसके लिए ये दो फॉर्मूलाज हमारे पास प्रेजेंट है। ठीक है, इज दैट क्लियर? फिर ये जो भी मेथड ऑफ डिफरेंस था वो हमने ये लेक्चर में कंप्लीट कर दिया। सो नेक्स्ट कांसेप्ट व्हिच इज प्रेजेंट दैट इज नथिंग बट द टेलीस्कोपिंग सीरीज। ओके, एग्जैक्टली टेलीस्कोपिंग सीरीज क्या आता है वो उसका कांसेप्ट और उसके क्वेश्चंस विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, so simply try to solve more and more questions regarding this point, and after solving those questions if you got any kinds of doubts then you can just put those doubts into our WhatsApp group or you can ask me those doubts whenever our physical sessions will start. Okay, so thank you so much, bye bye, take care.